many enjoyed worshiping the Lord? कितने लोगों को आनंद आता है प्रभु की आराधना करने में? Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Isn't the Lord wonderful? क्या हमारा प्रभु अद्भुत नहीं है? Yes. There is none like our wonderful Master Jesus. हमारे अद्भुत मालिक के समान कोई नहीं है यीशु मसीह। There was none like him, there is none like him, and there will be no one like him. उसके जैसा कोई नहीं था, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। Unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God. उस राजा का जो अदृश्य है, जो अनंत काल के लिए है, जो एकदम उत्तम बुद्धि के साथ है, Be the blessing and glory and honor and power and majesty and dominion forever. उसी को सारी आशीष, सारा गौरव, सारी स्तुति उसी को मिले हमेशा हमेशा के Hallelujah. लिए। Hallelujah. Now, you know, you and I, we were born not to know our parents. आप और मैं हमारे माता पिता को जानने के लिए पैदा नहीं हुए थे। You and I, we were not born to know our siblings. हम सिर्फ अपने भाई बहन को जानने के लिए पैदा नहीं हुए थे। You and I, we were not born to know our spouse. हम सिर्फ अपने पत्नी को जानने के लिए पैदा नहीं हुए थे। You and I, we were born to know our Creator. हम हमारे उद्धारकर्ता, हमारे हमको रचने वाले को जानने के लिए पैदा हुए थे। That's why at times I tell people that if before you leave the earth, know your Creator. इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले अपने रचिता को आप जानो। If you don't know your Creator before you leave the earth, यदि अपने रचिता को आप इस धरती को छोड़ने के पहले नहीं जानोगे you are in trouble. तो आप मुसीबत में हो। Hallelujah. Thank Hallelujah. you, Jesus. Okay. Now, if you look at the book of Hebrew, यदि इब्रानियों की किताब में हम देखेंगे chapter 9, verse 11, उसका 9वां अध्याय और 11 वचन, it says, But Christ being come and a high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, और मसीह जो एक उपराजक के तौर पर आया, अच्छी चीज़ों को लेकर आया, जो बेहतर थी उस और एक ज़्यादा परिपूर्ण संदूक वो लेकर आया। yes, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, और having obtained eternal redemption for us. और उसने जो उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया वो किसी बैल बछड़े के लहू से नहीं था, लेकिन उसने अपने खुद के लहू से उस जगह को, उस स्थान को एक ही बार प्रवेश किया। The high priest in the Old Testament is to enter the most holy place once in a year. जो उपराजक थे, जो याजक थे पुराने नियम में, वो साल में एक ही बार उस पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, अति पवित्र स्थान। He should take the blood of bulls and of animals and of goats and enter into the most holy place for his sin and for the people's sin. और वो जानवरों के जो लहू है उसको लेकर उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था अपने पापों के लिए और सारे जो इज़राइल के लोग थे उनके पापों के लिए। That was done once in a year. और वो साल में एक बार होता था। Now the scripture says, Christ being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle. और वचन कहता है कि मसीह जो है वो उस महायाजक जैसा आया और उत्तम और बेहतर चीजों को वो लेकर आया और एक बेहतर संदूक के लिए वो आया। Not made with hands, that is to say, not of this building. और ये जो वाचा का संदूक था इसको हाथ से नहीं बनाया गया, यानी वो एक इमारत नहीं थी। Remember, the temple that was made on the earth was made with human hands. जो मंदिर इस धरती पे बनाया गया था इज़राइल में, वो मनुष्य के हाथों से बनाया था। They were made by hands that they were made by people who were sinners. और वो उन लोगों के द्वारा बनाया गया था जो पापी थे। But in heaven there is a temple that is made by God himself. और स्वर्ग में लेकिन एक मंदिर है जो परमेश्वर ने स्वयं बनाया है। And Jesus did not enter the temple that was made with hands on the earth, but he entered into the temple that was made by God Almighty in heaven. आमीन। और यीशु मसीह जिस मंदिर में प्रवेश किए अपने लहू को लेकर, वो इस पृथ्वी का मंदिर नहीं था, लेकिन वो स्वर्गीय मंदिर के बारे में बोल रहा है। And the scriptures say he didn't take the blood of animals and of goats and of an heifer, but by his own blood he entered into the most holy place, having obtained eternal redemption for you and for me.
और यीशु मसीह उस जगह में उसने जानवरों के लहू को लेकर नहीं प्रवेश किया, लेकिन उसने अपने खुद को लहू को लेकर वो प्रवेश हुआ और एक ही बार हमारे लिए अनंत काल के उद्धार को उसने प्राप्त किया। The awesome thing about this high priest was he is the high priest and he was also the lamb. और इस महायाजक की अलग बात यह है कि वही महायाजक भी था और वही मेमना भी था जो वध होने वाला था। Hallelujah. हालेलुया। So he took his own blood. He didn't take the blood of animals. तो यीशु मसीह का स्वयं का जो लहू बहाया गया था उसको वो लेकर गया। Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. और वो बछड़ों के या गाय के लहू को नहीं, लेकिन अपने खुद के लहू को लेकर उस पवित्र स्थान में एक ही बार उसने प्रवेश किया। Your redemption is eternal. आपका जो उद्धार है वो अनंत काल का है। You have been redeemed eternally. आपको अनंत काल के लिए छुड़ाया गया है, बचाया गया है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Verse 13, for if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctify to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. आमीन। यदि जो गाय जो बछड़ों के जानवरों के जो लहू से अगर लोगों का शरीर साल में एक बार साफ होता था, यहाँ पर लिखा है कि कितना ज्यादा उस पाक मेमने का यीशु मसीह का लहू कितना ज्यादा जिसको उसने आत्मा के द्वारा अपने आप को अर्पण किया, वो कितना ज्यादा हमारे मनों को, हमारे विवेक को बुरे कामों से साफ कर देगा। कलीसिया हम हमेशा के लिए साफ हो चुके हैं। चर्च वी हैव बीन क्लीन फॉरएवर। Yes, forever. My God, you know that's a very big thing. आमीन। Jesus knew what he was doing. यीशु जानते थे वो क्या कर रहे हैं। None of you seated in this place is a sinner. आप में से कोई भी यहाँ पर जो बैठे हैं वो पापी नहीं है। The blood of Jesus Christ has turned a sinner into a saint. यीशु मसीह के लहू ने पापी को धर्मी बना दिया, संत बना दिया। Or Abashande. No wonder Paul the apostle, whenever he addressed the church, he always addressed them as saints and not sinners. इसीलिए पौलुस जो प्रेषित था वो जब भी कलीसिया को पत्र लिखता था तो उनको संत कहता था, पापी नहीं कहता था। Can you imagine? He called the Corinthians saints and not sinners. आप लोग यकीन कर सकते हो कि जो कोरिन्थी के राज के लोग थे उनको उसने संत कहा, पापी नहीं कहा। And Corinthians was a church that had all the sin in it, all the name of sin in the world, it was there in the church of Corinth. और जो कोरिन्थी का राज का चर्च था उसमें दुनिया के सारे पाप थे। Yet Paul by the inspiration of the Holy Spirit calls them to the saints in Corinth. पौलुस लेकिन पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा उन लोगों को संत बुलाता है। Saints, we are no longer sinners, we are saints in Christ Jesus. संतो हम अभी पापी नहीं है, लेकिन हम संत हो गए हैं, हम धर्मी हो गए हैं यीशु मसीह में। If you are in Christ Jesus, you are a new creation. यदि आप यीशु मसीह में हैं तो आप एक नई सृष्टि है। Can I tell you something? Because of Jesus, you are well known by God. और यीशु मसीह के द्वारा आपको पिता अच्छी तरह से जानता है। Outside Christ, He doesn't know you. और पिता आपको यीशु मसीह से अलग होकर नहीं जानता। Yes, He knows you in Christ Jesus. आपको वो यीशु मसीह में ही जानता है। So neither by the blood of bulls and of goats and of calves, but by His own blood He entered into the holy place, having obtained eternal redemption for us. तो जानवरों के या बछड़ों के लहू से नहीं, लेकिन वो अपने खुद के पवित्र लहू से उस पवित्र स्थान में एक ही बार उसने प्रवेश किया। Verse 14 is you don't know what happens to me when I read this. 14 वचन जो है जब मैं पढ़ता हूँ तो आप नहीं जानते हो कि मुझे क्या होता है। Can we as a church read it together? क्या हम पूरी कलीसिया एक साथ इसको पढ़ सकते हैं? Hebrews chapter 9 verse 14. इब्रानियों का 9:14। Here we go. 1, 2, 3. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. और यहाँ पर लिखा है कि कितना ज्यादा यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा जो उस अनंत काल की आत्मा के द्वारा अर्पित किया गया था, वो कितना ज्यादा हमारे मनों को, हमारे विवेक को साफ करता है ताकि हम बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर की सेवा कर पाए। You know, many a times our conscience they prick us. और बहुत बार हम देखते हैं कि हमारा जो विवेक है वो हमको चुभाता है। It will always prick us.
वो हम हमेशा हमको चुबाता रहता है। But here the Lord is saying that how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience. और यहाँ पर लिखा है कि कितना ज्यादा वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो तुमको साफ किया गया, वो कितना ज्यादा, कितना बेहतर तुम्हारे मनों को, तुम्हारे विवेक को साफ कर। Saints, the meaning of the word purging means to obliterate, to uproot everything which is not of God. और जो साफ करना यहाँ पर लिखा है, उसका मतलब हर वो चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसका नाश करना, उसको खत्म कर देना। Your old thoughts, your old nature, your old character has been separated from you. आपके पुराने ख्याल, आपके पुराना चरित्र, आपके पुराने गुणधर्म, ये सब आपसे अलग कर दिए गए हैं। They did not belong to you. ये अभी आप में मौजूद नहीं है। They have been separated from you forever. इन चीजों को आपसे हमेशा के लिए अलग कर दिया है। The blood of Christ has purged my conscience from dead works to serve the living और God. यीशु मसीह के लहू ने मेरे मन को, मेरे विवेक को साफ कर दिया है। That's why we can stand boldly before the throne of grace. इसीलिए हम धैर्य के साथ उसके कृपा के सिंहासन के सामने खड़े हो सकते हैं। The blood of Jesus Christ has made you as clean as God is. और यीशु मसीह के लहू ने आपको परमेश्वर के स्तर पर साफ कर दिया है। You are as perfect, as righteous, as holy as Christ himself is. आपको परमेश्वर ने उतना ही परिपूर्ण, उतना ही पवित्र, उतना ही सही बना दिया है जितना यीशु मसीह है। With one sacrifice he has perfected us forever. उस एक बलिदान के द्वारा उसने हमेशा के लिए हमको परिपूर्ण कर दिया। Say I am righteous. कहो मैं धर्मी हूँ। Say I am righteous. कहो मैं धर्मी हूँ। I am holy. मैं पवित्र हूँ। I am perfect. मैं परिपूर्ण किया गया हूँ। As Christ himself is. जैसा यीशु मसीह खुद है। Hallelujah. हालेलुया। How much more कितना ज्यादा shall the blood of Christ, वो यीशु मसीह का लहू, who through the eternal Spirit जो उस अनंत काल की आत्मा के द्वारा offered himself without spot to God. उसने अपने आप को बिना दाग वाले मेमने जैसा पिता को अर्पण किया। Christ offered himself without spot to God. पिता ने, यीशु मसीह ने बिना दाग और धब्बों के अपने आप को अर्पण किया पिता को। He didn't do it for himself, he did it for you and for me. और वो उसने खुद के लिए नहीं किया, लेकिन उसने आपके और मेरे लिए किया। And that's why our conscience have been purged by the blood. और इसीलिए हमारा जो विवेक है उसको धोकर साफ कर दिया गया है उसके लहू के द्वारा। We have been purged, our conscience has been purged from dead works to serve the living and the true God. और मरे हुए जो काम थे, पाप के जो काम थे, उससे हमको धोकर अलग कर दिया है और अब हम परमेश्वर के लिए जीवित है। So when you come to the Lord's table, तो इसीलिए जब हम प्रभु भोजन पे आते हैं, this is what we remember what he did for us. यही हमको याद करना है कि उसने हमें हमारे लिए क्या किया। That because of his sacrifice you have become one with God. उसके बलिदान के द्वारा आप परमेश्वर के साथ एक हो गए हो। Therefore being justified by faith we have become one with God through our Lord Jesus Christ. और इसीलिए विश्वास के द्वारा धर्मी होकर हम पिता के साथ एक हो गए। You who once were afar off have been made nigh by the blood of Christ. आप जो एक दफा दूर थे, अब यीशु के लहू के द्वारा आप निकट लाए गए हो। Hallelujah. हालेलुया। Now verse 15 says, and for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgression that were under the first testament, they we shall call might receive the promise of eternal inheritance. और 15 वचन कहता है कि इसी के लिए वो एक मध्यस्थी करता है नए नियम का। He is the lawyer of the New Testament. वो एक मध्यस्थी है, एक लॉयर है। A lawyer's job is to prove the one who is guilty, not guilty. और एक जो लॉयर होता है उसका काम होता है कि जो उसका क्लाइंट है उसके बारे में ये बताना है कि ये निर्दोष है। See the criminal knows that he is guilty. जो क्रिमिनल है वो जानता है कि उसने गुनाह किया है। But he has somebody to defend his case and he has to ask somebody to prove that he is not guilty. लेकिन वो फिर भी वो जाता है एक लॉयर के पास और उसको कहता है कि ये साबित करो कोर्ट में कि मैं दोषी नहीं हूँ। And if he is a very smart lawyer and an intelligent lawyer, he will make sure that though you are guilty, he will prove you that you are not guilty. और बहुत अगर चतुर ऐसा वो लॉयर होगा तो वो ये ऐसा साबित कर देता है कि अगर इसने गलती किया भी है तो वो साबित करता है कि इसने गलती नहीं किया। Saints, God has hired the best lawyer for us.
संतो पिता ने एकदम उत्तम ऐसे लॉयर को हमारे लिए लाया है, And this is the only lawyer that has not lost a single case. और ये एक इकलौता लॉयर है जिसने एक भी केस को हारा नहीं है, And he is your lawyer and my personal lawyer. और वो आपका और मेरा पर्सनल लॉयर है. Hallelujah. हालेलुया. I feel like going on this rooftop and shouting it from there, I'm telling you. मुझे मन कर रहा है कि मैं छत पर जाकर चिल्लाऊं वहां से, Let the whole of Pimpri hear it. पूरा पिंपरी इसको सुने. The scripture says that we have got eternal inheritance. वचन कहता है कि हमारे पास अनंत काल का विरासत हमको मिला है. Not temporary, but it is eternal. ये टेम्पररी नहीं है लेकिन अनंत काल का है. You and I, we were bought by the precious blood of Jesus. आपको और मुझे यीशु मसीह के कीमती लहू के द्वारा खरीदा गया था. You are bought with a price. आपको एक कीमत से खरीदा था. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Let's partake of the Lord's Supper. हम इसमें भाग लेंगे. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you for the blood. तेरे Thank लहू you. के लिए हम धन्यवाद देते हैं. Thank you for your body that was broken for each and every one of us, Lord. तेरे शरीर के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जो हम में से हर एक के लिए तोड़ा गया था. Billions of thank you for your blood. Billions of thank you for your body. और अरबों धन्यवाद तेरे लहू के लिए और अरबों धन्यवाद तेरे शरीर के लिए. And your blood has purged my conscience और तेरे लहू ने मेरे विवेक को धोकर शुद्ध किया है from dead works to serve the living God. उन मृतक कृत्यों से, और मैं ताकि मैं परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की सेवा करूं. And your body was broken, and my body, because your body was broken, my body is been made whole. और क्योंकि तेरा शरीर तोड़ा गया था तो मेरा शरीर परिपूर्ण हो रहा है, चंगा हो रहा है. We give you praise and we give you the glory. हम तुझे स्तुति और आराधना देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमीन. Thank you, Lord. Let's partake. Thank you, Jesus. किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में हम सभी का स्वागत करते हैं. आज बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं. सो लेट्स वेलकम. हम आपका स्वागत करते हैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. ओके, सो आगे बढ़ते हैं और फटाफट क्विक अनाउंसमेंट्स. हमारे किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ के सोशल मीडिया पर चैनल्स हैं जो कि है यूट्यूब पर और फेसबुक पर चैनल्स हैं. आप उनको फॉलो कर सकते हैं और प्रभु में बढ़ सकते हैं. आपको यूट्यूब पर एक लिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर सारे जितने भी संडे सर्विस होता है वो सारे प्लेलिस्ट में आपको एडेड मिलेंगे. और अगर आपको प्रभु में बढ़ना है तो आप उसको सुनकर आपके पास अगर कोई भी प्रश्न है आप उसे हमको मैसेज कर सकते हैं. कोई भी टीम मेंबर आपके साथ कनेक्ट होकर आपको प्रभु में बढ़ने के लिए मदद करेंगे, राइट. और साथ ही में आप उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हो. आमीन. और उसी के साथ साथ एक छोटा सा भाग है जो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री का एक छोटा सा भाग है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा बड़ा धमाका करता है. वो जो कि बच्चों के लिए किंगडम बाइबल स्कूल, उनका प्लेलिस्ट है जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलेगा. शुरू से जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं आप वो देख सकते हैं और अपने बच्चों को एनरोल कर सकते हैं. एनरोल करने के लिए आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा होगा, उसको स्कैन करें, अपने बच्चों को एनरोल करें प्रभु के वचन में बढ़ने के लिए, राइट. और उसी का प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है और इंस्टाग्राम पर है. आप उनको फॉलो कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं अपने बच्चों को, राइट. और सारे पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि जितने भी क्लासेस होते हैं हमारे, आप भी जुड़कर देखिए कि किस तरीके से बच्चों को शिक्षा मिलती है, राइट. सो मंडे और फ्राइडे को एक क्लास ऑनलाइन होता है, आप एनरोल कर सकते हैं अपने बच्चों को. एंड आज मदर्स डे है, सो ऑल द ब्यूटीफुल मॉम्स, जितने भी मम्मियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे. ओके.
और अभी हम प्रभु जितने भी, हाँ और एक चीज़, गवाही अगर किसको बांटना है तो प्लीज़ अपने तक ना रखें, गवाहियों को अपने मनों को तैयार करें और हम वचन के बाद, सेशन के बाद हम गवाही लेंगे। और प्लीज़ सबको रिक्वेस्ट है, अगर आपको अगर गवाही देनी है, प्रभु को गौरव देना है, तो आप अपने मनों को तैयार करें और अपनी अच्छी खासी टेस्टिमनी फटाफट रेडी करके तैयार रखें। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैं ब्रदर अमिश और ब्रदर मनोज को बुलाना चाहती हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Bass थोड़ा कम. Thank you, Jesus. So, let's all bow down our heads and we'll pray. अपने सर को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। Thank you, Abba Father, for this beautiful time and for this beautiful people you have brought here, Lord. पिता, इस सुंदर से समय के लिए, इन खूबसूरत लोगों के लिए धन्यवाद जिनको आप यहाँ पर लाए हो। I pray, Lord, that they have come with expectation and they will not go back disappointed. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग आशा के साथ यहाँ पर आए हैं और ये खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटेंगे। Because it's not me who will be speaking today, but it will be Holy Spirit who will be speaking today. आज मैं नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा बात करेगा। I pray, Lord, that you open our eyes of understanding, Lord. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी आंखों को तू खोल। Let us see you in the truth. हम तुझको देख पाए सच्चाई में। And as we will see you, we will be transformed, Lord. और जैसे हम तुझको देखते हैं हम बदले पिता। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we all agree and pray, Lord. यीशु के नाम से हम सब मांगते हैं पिता। Amen. आमीन। Thank you, Jesus. Let's start. I think few months back I started with a message that we should see ourselves like God sees us. कुछ महीनों पहले मैंने एक संदेश का आरंभ किया था कि हमको अपने आप को वैसा देखना है जैसा परमेश्वर हमको देखता है। Because I remember that when I think Brother Clifford was preaching here and he was saying that God has perfected us and made us like Christ. और मुझे याद आया कि जब क्लिफर्ड ब्रदर यहाँ पर प्रचार कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि परमेश्वर ने हमको उसके जैसा बनाया है। Okay, but we don't feel that every day that I am like Jesus, I am exactly like Jesus, I am perfect like Jesus. लेकिन हर रोज हमको ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं यीशु जैसा हूँ, उसके जैसा परिपूर्ण हूँ। Like we always feel that distance between Jesus and us because his level is something different, my level, what I am doing is completely different. लेकिन हमको हर रोज वो अंतर महसूस होता है हमारे और यीशु के बीच में, क्योंकि जो वो कर रहा है वो अलग है और जो मैं कर रहा हूँ वो अलग है। And the reason being, we don't see his face as often as we should be seeing. और इसका कारण है क्योंकि हम उसको उतना ज़्यादा नहीं खोजते जितना हमको खोजना चाहिए। The more we'll seek him, we will know that how much he loves us and how much we are like him. और जितना हम ज़्यादा उसको खोजेंगे हम जानेंगे कि वो हमको उसके जैसा देखता है और प्रेम करता है। Yes, because I know that we are all here in this world, we are doing different work. Like on Sunday we don't work, we come here, but throughout the week we are doing different works. मैं जानता हूँ कि पूरे हफ्ते भर में हम अलग-अलग काम करते रहते हैं। I mean, we are so different that I can't say Pastor Ganesh uncle, his work is different. What he does on Monday, I do something else. पास्टर गणेश जो है उनका जो काम है मंडे को वो मेरे काम से अलग होता है। But we should remember that God has created us to walk in the works that he has prepared for us. लेकिन हमको याद रखना है कि परमेश्वर ने हमको उन कार्यों को करने के लिए बनाया है जो उसने हमारे लिए पहले से तैयार करके रखे हैं। Yes, let's go to Ephesians chapter 2 verse 10. एफिसियों के दूसरे अध्याय और 10 वचन में हम जाएंगे। It says, for we are his workmanship. यहाँ पर लिखा है कि हम उसके
कारीगर है, उसके हाथ की कारीगरी है हम. उसके हाथ की कारीगरी है. Yes. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. हम उसके हाथ की कारीगरी है, यीशु मसीह में अच्छे कामों को करने के लिए बनाए गए. Yes. Which God prepared beforehand that we should walk in them. और इन कृत्यों को परमेश्वर ने पहले से ही तैयार किए ताकि हम उनमें चल पाए. So every one of us, first of all, Paul is saying that we are His workmanship. We are His, artistic work. सबसे पहले परमेश्वर कह रहा है कि हम उसके हाथ की कलाकारी है, हमको उसने अपने हाथों से बनाए हैं. Right. So the word he used here is workmanship. जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो हाथों की रचना है. Yes. Which means I don't know if I am not much interested in art, but one thing I understand that an artist never makes same art again. और कलाकारी में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं एक जानता हूँ कि एक कलाकार जो है वो एक ही तरह की चीज़ को हर बार नहीं बनाता. Right. Which means if he has created me, he will not create another person like me again. इसका मतलब यदि परमेश्वर ने मुझे बनाया है तो मेरे जैसे एक और व्यक्ति को वो नहीं बनाएगा. And he has made me special. I have something which you all may not have. और उसने मुझे अलग बनाया है, तो मुझ में ऐसा कुछ उसने डाला है जो शायद बाकी लोगों में नहीं होगा. He has made you unique, which I don't have, others may not have. और उसने आपको इस तरह से बनाया है कि कोई चीज़ जो आप में है वो मुझ में या बाकी लोगों में नहीं होगी. I think just a week back we were talking, like brother Sam was there. He was sharing about about his passion that he likes to evangelize. He likes to talk to new people and make friends. एक हफ्ते पहले ही हम लोग बात कर रहे थे और भाई सैम बता रहे थे कि उनको इवेंजलिज्म करना पसंद है, उनको नए लोगों से बात करना पसंद है. Because God has made him that way. क्योंकि परमेश्वर ने उनको वैसे बनाया है. You just be around him, you'll start, like talking to him, be with him. और उनके साथ में अगर आप रहोगे तो उनसे बात करना और उनको आप पसंद करने लगोगे. And that's his calling. God has put that gift in him. और वो एक तरह से उनका बुलाहट है, और वो जो गिफ्ट है परमेश्वर ने उनमें डाला है. The same gift we both may not have. और वही तोहफा हम दोनों में शायद नहीं हो. People run away from us. लोग हमसे दूर भागते हैं. But that doesn't mean God haven't created us different, like artistically. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमको कलाकारी के साथ नहीं बनाया. God has put a different art in him. God has put different art in us. परमेश्वर ने अलग कला को हम में डाला है, भाई में डाला है. When I say art, it doesn't mean just nature. It means His purpose and His nature in us. और जब मैं कला बोल रहा हूँ तो उसका मतलब सिर्फ कलाकारी नहीं है, लेकिन उसके परमेश्वर की जो योजना है हमारे जीवन में, उसके अनुसार कुछ चीज़ें उसने हमारे अंदर डाली है. Which means the way we have been raised, that may not be the same way God has purpose for us to walk. इसका मतलब जिस तरह से हम बड़े हुए, इसका ज़रूरी नहीं है कि वही योजना थी परमेश्वर की कि हमने उसी मार्ग में चलना चाहिए. The reason I'm talking about this is because from childhood we have been brought very differently. मैं इस चीज़ के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बचपन से हमको बहुत अलग तरीके से बड़ा किया गया. When a child is born, he or she is always on the radar of Satan, enemy. जब एक बच्चा जन्मता है तो शैतान उसके पीछे पड़ता है. Because he sees, like we just see that child as one innocent child. He's just new. He's he's so good. There's no evil in that child. हम बच्चे को देखते हैं कि यार ये तो एक अच्छा बच्चा है, उसमें कोई बुराई नहीं है. But how enemy sees him is there is a purpose of God in him. He is going to shake this world for Jesus. लेकिन शत्रु जो है, शैतान जो है, उसको ऐसा देखता है कि परमेश्वर ने इसको एक योजना के तौर पर बनाया है और ये दुनिया में परमेश्वर के नाम को बढ़ाएगा, तो उसको एक शत्रु उस नज़र से दिखता है. This devil knows this verse that he is a workmanship of God. He is artistic work of God. तो शैतान को यह वचन पता है, वो जानता है कि जो बच्चा है वो परमेश्वर की कलाकारी है, यानी परमेश्वर ने एक मकसद से उस बच्चे को बनाया.
So he tries to beat out that artistic work in him by his, giving him bad experience, having abuses and bad parenting. You just name it. Every bad thing he tries to throw at him. तो उस बच्चे में जो कलाकारी है, जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर का तोहफा है, उसको शैतान अलग अलग चीज़ों से उसको बुरे एक्सपीरियंस देके, या माँ बाप बुरा बर्ताव करते हैं, बुरे चीज़ों से शैतान उस चीज़ को उसमें से पीट पीट कर निकाल देना चाहता है। But God is good. लेकिन परमेश्वर भला है। When we come to him, जब हम उसके पास आते हैं, he restores everything that was lost. और वो उस हर चीज़ को वापस लौटा देता है जो हमने खो दी थी। I mean, I shared my testimony in one of the messages that, I was very shy, very timid, very lost of my identity. I would never talk to people looking into their eyes. और मैंने मेरी गवाही दी थी पहले भी कि मैं बहुत शर्मीला था और मैं हिम्मत से लोगों की आंखों में देखकर उनसे बात नहीं कर पाता था। Today it's the other way around. People can't talk to me looking in my eyes. They are kind of scared to talk to me. लेकिन आज उल्टा हो गया है कि लोग मेरी आंखों में आंखें डाल के नहीं बात कर पाते, वो डरते हैं मुझसे। It's not because I have become something great, but because God has fixed that identity in me that I don't see myself lesser than other people. लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, लेकिन परमेश्वर ने वो जो मेरी पहचान थी उसको ठीक कर दिया है, और अब मैं अपने आप को दूसरों से नीचे नहीं देखता हूँ। And I don't approve it on my own कि this is a good thing, but I saw this in Jesus. That's why I say that we all should have it. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ ये अच्छा है, लेकिन ये चीज़ मैंने यीशु मसीह में देखी और इसीलिए हम सबको ये करना चाहिए। When Jesus walked on this earth, he said one thing, that I do not receive honor from men. My God, my Father honors me. जब यीशु उस धरती पे चल रहे थे तो वो कहते थे कि मैं मनुष्य के पास से आने वाले सम्मान को नहीं प्राप्त करता, उसकी अपेक्षा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा सम्मान स्वर्ग से आता है, पिता से आता है। I think it's in John chapter 3. We can go there. यूहन्ना के 3 में ऐसे यीशु ने कहा। Let's go to, John chapter verse 2. Chapter 2 verse 24. It says, but Jesus did not commit himself to them because he knew all men and had no need that anyone should testify of man, for he knew what was in man. तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने अपने आप को उन लोगों के स्वाधीन नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य कैसा है, मनुष्य के अंदर क्या है। So he never looked for man's acceptance, that man should come and say, brother, you're so good, you're so spiritual, you're so nice, I am your big fan. He didn't expect anyone to say that. तो यीशु ने कभी इसकी अपेक्षा नहीं की कि लोग आकर कहे अरे तू कितना अच्छा है, कितना तू धर्मी है, कितनी अच्छी चीज़ें करता है। उसको लोगों से तारीफ की अपेक्षा नहीं थी। In fact, one person comes to him and says, good teacher, what should I do to have eternal life? तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आकर उसको कहता है कि अच्छे शिक्षक, मैं क्या करूं जिससे कि मुझे अनंत काल का जीवन मिले। Jesus says, why do you call me good? There is no one good, only God is good. तो यीशु कहते हैं कि तू मुझे क्यों अच्छा बोल रहा है, परमेश्वर ही अच्छा है। So Jesus never allowed flattery. He was very clear that I see myself like God sees me. I don't need anyone to lift me up. तो परमेश्वर यीशु ने झूठी तारीफ को कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचता है। So the reason I'm telling everything is because what Brother Clifford was sharing, that God has perfected us and made us exactly like Jesus. तो यह मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्रदर क्लिफर्ड ने कहा कि परमेश्वर ने हमको परिपूर्ण कर दिया और यीशु मसीह जैसा बनाकर हमको स्वीकार किया। Right? But again, coming to that point, we don't see ourselves like that. We don't feel it every day. लेकिन इस चीज़ को हम हर रोज़ देखते नहीं हैं, हर रोज़ उसको अनुभव नहीं करते हैं। Reason being, I recently got this revelation. Why is it happening? और इसका जो उत्तर है वो मुझे कुछ दिनों पहले मिला कि ऐसा क्यों हो रहा है। Because we see Jesus as someone who was a superhero, who came, who saved us. Now he went back and he has told us, just wait until I come back. You keep believing, keep just
do your routine, go to church, read word, do all those good things until I come, okay? You just wait. और हम क्योंकि हम ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एक उद्धार करता है, एक सुपर हीरो है जो हमको बचाकर वो स्वर्ग चला गया और ये बोल के गया कि तुम रुके रहो, मैं कुछ दिन में आके तुमको फिर से बचाऊंगा, तुम Yes. चर्च जाते रहो, अच्छे बच्चे बन के रहो. But we forget that he came for us so that, he didn't came just for us, he came as us. हम ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए नहीं आए, वो हमारे जैसा बनकर इस धरती पे आए. Yes, because Jesus did not come as God and then defeated Satan. यीशु मसीह परमेश्वर बनकर इस धरती पे नहीं आए, He came as a man to defeat Satan. वो एक मनुष्य का रूप धारण कर कर इस धरती पे आए शैतान को हराने के लिए. Because Satan, when we read in Genesis, he stole the place of man. He defeated man and he stole his place. क्योंकि हम उत्पत्ति में देखते हैं कि मनुष्य को जो स्थान दिया गया था उसको मनुष्य ने हार दिया शैतान को, शैतान ने उस स्थान को चुराया था. So devil stole man's place, so one man has to come and defeat him. क्योंकि मनुष्य के हाथ से शैतान ने इस पृथ्वी का राज्य छीना था, तो इसलिए एक मनुष्य को ही लड़कर उसको वापस लेना था. And Jesus came as second Adam. और इसीलिए यीशु दूसरे आदम के तौर पर आए And he came and defeated Satan और वो आए और उन्होंने शैतान को हराया and he gave us that victory. और उन्होंने वो जय हमको दिया. Now enemy doesn't want us to know that we are victorious. अब शैतान नहीं चाहता है कि हम जाने कि हमको जय मिल गया. He knows our potential. He knows that, this person walking here is exactly like Jesus. वो जानता है कि हम में क्या ताकत है, वो जानता है कि ये मनुष्य जो यहाँ पर चल रहा है वो हूबहू यीशु मसीह जैसा है. He knows it, वो जानता है but we don't know it. लेकिन हम नहीं जानते, Because we go by experience. क्योंकि हम अपने अनुभव के अनुसार चलते हैं. We see that, okay, I haven't done good in life. I haven't done this. I haven't prayed enough. I haven't studied enough. I don't have good education. हम अपनी कमियों को देखते हैं, हम देखते हैं कि मैंने अच्छी चीज़ें नहीं की, अच्छी पढ़ाई नहीं की, मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहा हूँ या बाइबल नहीं पढ़ा है. So we have tied our identity to different things. हमने हमारी जो पहचान है उसको अलग अलग कृत्यों के साथ बांध कर रखा है. As long as we are maintaining those things, we will be happy. और जब तक हम वो कृत्य कर रहे हैं तब तक हम खुश रहेंगे हमारी पहचान को लेकर. Like for example, I tie my identity as, being top performer in my office. तो अगर मेरी पहचान ऐसी है कि मेरे ऑफिस में सबसे उत्तम काम मैं ही कर रहा हूँ और उसमें मेरी पहचान अगर लगी है, Yeah, and that thing gives me sense of, joy. That thing gives me sense of satisfaction. और मेरी पहचान क्योंकि उसमें है, तो जब मैं अच्छा करता हूँ तो उससे मुझे आनंद होता है, उससे मुझे खुशी होती है. I have done this in past. और ऐसा मैंने किया है पहले I have been happy for a very short time. और बहुत थोड़े समय के लिए मैं खुश हुआ. Because as long as I did some mistake in my work, तो जब भी मैं अगर कोई गलती करता था मेरे काम में, so that castle of cards which I have created, तो जो ताश का जो महल मैंने बनाया है that would just fall down. वो गिर जाता था. Because I have made that identity for me. क्योंकि मैंने उस पहचान को अपने लिए बनाया That as long as I am doing this, I am good. God is happy with me. कि जब तक मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ परमेश्वर मुझसे खुश है. But God doesn't want us to have our identity in anything that is in this world. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी पहचान जो है इस दुनिया में किसी भी चीज़ में हो. God wants us to relate ourselves with Jesus alone. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को सिर्फ यीशु के साथ अपनी पहचान को देखें. Yes, we should compare ourselves only with Jesus. हमारी तुलना जो है वो सिर्फ यीशु के साथ होनी चाहिए. Why? क्यों? Let's read Romans chapter 8 verse 29. रोमियो का 8:29 हम पढ़ेंगे. It says, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. यहाँ पर लिखा है कि जिनको वो पहले से ही जानता था उसने निर्धारित किया कि ये लोग
परमेश्वर के स्वरूप में ढले जाएंगे, and that he might be the firstborn among many brethren. ताकि वो पहलोटा हो, पहला पुत्र हो बहुत सारे भाइयों में। Okay, now listen to me. अब मेरी और सुनिए, मेरी बातों को सुनिए। Do you know what is firstborn? क्या आप जानते हो कि पहलोटा या पहला बेटा होना क्या होता है? In Jewish culture, firstborn means he came first in the world. जो यहूदियों का जो कल्चर है उसमें पहलौटा मतलब वो पहले इस धरती पे आया, And he was the one who would take the name of the family ahead. और वही है जो उस परिवार के नाम को आगे बढ़ाएगा। He got some extra blessing, he got extra provision. उसको कुछ चीज़ें बाकियों से ज़्यादा मिली, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा आशीषें मिली। But the person who is born after that firstborn, लेकिन उस पहलोटे के बाद में जो बच्चा पैदा होता है, even that son or that son also will have same nature as the firstborn. उस दूसरा जो बच्चा है उसका भी चरित्र पहले वाले जैसा होगा। He will also have same family name. उसके पास भी वही परिवार का नाम होगा, He will also have share in that property. और उस जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा इस दूसरे बच्चे को भी मिलेगा। So this verse is saying that God chose all of us ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने हम सबको चुना when we were not even born. जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। Like we were not even born and God was sitting on the throne and he was thinking about us that my son is going to born on this day. हम पैदा भी नहीं हुए थे लेकिन परमेश्वर सिंहासन पर बैठकर विचार कर रहा था कि मेरा बेटा इस दिन पर पैदा होने वाला है, And he loved you from that day. और उसने उस दिन से आपको प्रेम किया है। From that day he knew that you will come into world, you will be born in an unbelieving family, you will do idol worship, you will do all the sins that are in the world. और उस दिन से वो जानता था कि आप एक अविश्वासी कुटुंब में पैदा होंगे, आप मूर्ति पूजा वगैरह भी करोगे, और वही सारी चीज़ों को जानता था। But God also made a provision that he told Jesus that you have to go and die for my son. लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता भी बनाया और यीशु मसीह को बोला कि तुमको जाकर मेरे बेटे के लिए मरना है। And Jesus said, yes Father, I'll do it. और यीशु ने कहा हाँ पिता मैं करूँगा। And that's how God had a plan to save you before you even started messing up your life. और इसी तरह से परमेश्वर की योजना थी आपको बचाने की, आप गलती करते उससे भी पहले। Before you could mess up your life, God had thought how to get you back. आप अपने जीवन का नाश करते उससे पहले परमेश्वर ने सोच लिया था कि आपको वापस कैसे लाना है। And this truth was so inbuilt in Jesus. और ये जो सच्चाई है वो यीशु मसीह में इतने गहरे तौर पे गई थी। That is the reason we see that his words were never fallen to the ground. इसीलिए हम देखते हैं कि उसके शब्द कभी धरती जमीन में नहीं गिरे। Whatever he said, that happened. जो भी उसने कहा वो पूरा हुआ। He was so in line with Father that he says, I see my Father doing work and I do the same thing. और वो पिता के साथ इतना एकता में चल रहा था कि वो कहता है कि मैं पिता को कुछ करते हुए देखता हूँ और वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। And today we have the same Father who is Jesus' Father. और आज हमारा पिता वही है जो यीशु मसीह के पिता है। Right? We belong to same Father. हम उसी पिता के हैं। God is a Father. पिता हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। Right? Only the difference is Jesus is firstborn. सिर्फ अंतर ये है कि पहला पुत्र जो है वो यीशु मसीह है। We are also God's sons. और हम भी परमेश्वर के बेटे हैं। We also have share in his property. और उसकी जो विरासत है उसमें हिस्सेदारी हमारी भी है। You know, in one place Jesus says, fear not little flock, it's your Father's good pleasure to give you the kingdom. और एक जगह पे यीशु कहते हैं कि डरो मत बच्चों, ये पिता को इससे खुशी मिलती है कि वो राज्य तुमको दे। God doesn't like to keep things to himself. He doesn't like to keep blessings to himself. पिता को इससे खुशी नहीं मिलती कि वो आशीषों को अपने पास ही समेट कर रखे। He loves to just give it to you. वो उसको आनंद होता है जब वो आपको चीजें देता है, आपको आशीषें देता है। Because he is a father who gives. क्योंकि वो एक पिता है जो देता है। He is the father who gave his son for us. उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। I would never give my son for anyone. मैं अपने बेटे को कभी किसी के लिए नहीं दूंगा। He gave his son for me. उसने अपने बेटे को मेरे लिए दिया। You know, that much he loves us.
उतना वो हमसे प्यार करता है। Now, what is our responsibility here? अब हमारी जिम्मेदारी क्या है इस जगह पर, That we should always see ourselves how God sees us. कि हमने हमेशा अपने आप को उस तरह से देखना है जैसा परमेश्वर हमको देखता है। I think in that message which I spoke earlier, I spoke about that world keep just put labels on us who we are. They define who we are. और उस पहले संदेश में मैंने बताया कि दुनिया जो है वो अलग अलग लेबल्स को हम पे लगाती है, वो हमको डिफाइन करना चाहती है, हमारी पहचान को बताना चाहती है। When as a child you go to school, they give you grades. जब आप एक बच्चे होते हो तो आप स्कूल में जाते हो और वो आपको ग्रेड्स देते हैं, मार्क्स देते हैं। They tell you that you are below average, average. वो आपको कहते हैं कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप बिलो एवरेज हो, कमज़ोर स्टूडेंट हो। They compare you with other children and then they give you score. वो आपकी तुलना दूसरे बच्चों के साथ करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आप कहाँ पर आपकी रैंक है। But word of God says, I am a workmanship of God. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर के हाथ की रचना हूँ, I am an artistic work of God. मैं उसके कलाकारी का एक प्रकटीकरण हूँ। You cannot compare one piece of art with other. और आप एक कला की दूसरी कला से तुलना नहीं कर सकते। You cannot tell which painting is good. आप ये नहीं बोल सकते कि कौन सी पेंटिंग बेहतर है। Both are arts. दोनों ही कला है, Both are created by same artist. दोनों एक ही कलाकार ने बनाई है, And both paintings have different message. और दोनों जो पेंटिंग है उनमें अलग अलग संदेश है। So God has prepared that message, or I would say work, before we were even born. परमेश्वर ने ये वो संदेश या उस कृत्य को हमारे लिए बना दिया हमारे पैदा भी होने से पहले। If we go to Acts chapter 3, प्रेषितों के तीसरे अध्याय में अगर हम जाएंगे, you can read it later, but I'll just give you a gist of it. आप बाद में इसको पढ़ सकते हो। So there we see that Peter and John, they go to temple at the hour of prayer. हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो है वो मंदिर में जाते हैं प्रार्थना की घड़ी पे। Right? That is the 9th hour, means 3 o'clock in the afternoon. तो ये तीसरा पहर नवा पहर कहा जाता है, बट दोपहर में ये 3 बजे है। So that time they go to the temple, तो उस समय वो मंदिर में जाते हैं, and it's written that they used to keep one man there who was a beggar, used to ask money for people who would come there. और वहाँ पर लोग एक व्यक्ति को बिठा कर रखते थे जो एक भीख मांगने वाला था, और ताकि लोग जो अंदर जा रहे हैं उसको कुछ दे कर जाए। Now this man is beggar, he is lame from his birth. और ये जो व्यक्ति है वो अपने जन्म से ही लंगड़ा था, He couldn't walk. वो चल नहीं पाता था। And from a very long time they used to keep him at that place to beg from people. और बहुत लंबे समय से वो लोग उसको उस जगह पर रखते थे और उसको भीख मांगने के लिए वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। Now I am sure this he used to be at that place gate that's called beautiful gate. और अब मैं जानता हूँ कि वो उस जगह पे था जो एक सुंदर गेट उसका नाम था। Now I am sure that Jesus who also would have passed by that gate multiple times. और मैं ऐसा हुआ होगा कि यीशु भी बहुत बार उस जगह से गुजरे होंगे। Now this guy is he lives by begging. That means he wouldn't take any holiday, right? अब ये व्यक्ति जो है वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है, इसका मतलब वो छुट्टी नहीं लेता होगा। So he would be there every day. तो वो हर रोज वहाँ पर होता था, And Jesus would have passed by there multiple times. और यीशु वहाँ से बहुत बार गुजरे होंगे। But we don't see it that Jesus healed that man. लेकिन हम नहीं जानते कि यीशु ने उसको चंगा किया। We don't see that Jesus healed this guy also. हम नहीं देखते हैं कि यीशु ने उसको चंगा किया था। But we see that Peter and John, when they are going there, लेकिन हम देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना वहाँ पर जाते हैं, they just go there and Peter heals that man. और वो लोग वहाँ पर जाते हैं और उस व्यक्ति को चंगा कर देते हैं। Now this is some work which was prepared for Peter and John. और ये वो कार्य था जो पतरस और यूहन्ना के लिए बनाया गया था। Jesus didn't walk in this. यीशु ने इसमें काम किया। No, Jesus did not walk in their work. यीशु ने उनके कृत्य पर काम नहीं किया था। That work was for Peter and John to do. वो कृत्य वो कार्य पतरस और यूहन्ना के करने के लिए रखा गया था।
That's why when they came there, they were at right place at right time and they did the work. और इसीलिए जब वो वहाँ पर आए तो वो सही जगह में सही समय पर थे. The same way, उसी तरह से there are many works which God has prepared for you to do individually. ऐसे बहुत सारे काम हैं जो परमेश्वर ने आपके करने के लिए बनाए हैं, Which has your name on it. जिसके ऊपर आपका नाम है. That this work will be done by this brother. कि ये जो काम है ये इस भाई के द्वारा किया जाएगा. We know in Old Testament prophet Elijah. हम जानते हैं पुराने नियम में जो नबी था एलिया, He was such a radical person और वो एक अलग रैडिकल व्यक्ति था that the entire Israel has gone after serving idols, the Baals. कि पूरा इज़राइल जो है वो मूर्ति पूजा करने में लगा हुआ था. Now God raises this one man और प्रभु इस एक व्यक्ति को उठाता है and he says Lord is the God. और वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है. Yes, he is the one who says only Lord is God. वही है जो कहता है कि यहोवा परमेश्वर है. Entire Israel has forgotten God. और पूरा इज़राइल जो है वो परमेश्वर को भूल चुका है. And God raises this one man to say that he is the true God. और परमेश्वर उस एक व्यक्ति को उठाता है ये कहने के लिए कि यहोवा परमेश्वर है. And he goes there, he challenges all the other worshippers saying, whoever is the true God, he will answer by fire. और वो वहाँ पर जाता है, उनको चुनौती देता है कि जो भी सच्चा परमेश्वर है वो आग के द्वारा उत्तर करेगा. If you read it carefully, Elijah is so confident about his God. और अगर आप पढ़ोगे तो एलिया जो है वो बहुत उसमें साहस है, बहुत उसको कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि परमेश्वर उसका उत्तर देगा ही. That he goes there and he starts mocking other gods. कि वो जाकर दूसरे जो उनके परमेश्वर होते हैं उनकी ठट्टा करने लगता है. He says your God must be sleeping, just shout louder, he must be sleeping, it's afternoon. वो बोलता है कि तुम्हारा परमेश्वर शायद सोया होगा, दोपहर का समय है इसलिए तो थोड़ा ज़्यादा चिल्लाओ. So they, he starts provoking them, to do more. ये उनको उचकाने लगता है, वो ज़्यादा करने लगते हैं. They start cutting themselves. वो अपने आप को काटने लगते हैं. So it's been entire day they are shouting, cutting themselves, nothing happens. और पूरा दिन हो जाता है कि वो लोग अपने आप को काट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कुछ नहीं होता. Then Elijah comes. फिर एलिया आता है. He says pour out water on the altar. वो बोलता है कि उस वेदी पर पानी डालो. He put so much water that entire that the border that was there, even that was filled with water. वो इतना उसमें पानी डलवाता है कि जो उसके वेदी के आसपास बाजू में जो गड्ढा था वो गड्ढा भी पानी से भर जाता है. And then he just makes one small prayer. और एक छोटी प्रार्थना वो करता है. And the fire comes from heaven and consumes the entire sacrifice. और आग जो है वो स्वर्ग से आकर उस सारे अर्पण को खत्म कर देती है. Imagine one man standing against thousands of people. आप सोचिए कि एक व्यक्ति खड़ा है हजारों लोगों के खिलाफ. His one mistake and they would have cut him to pieces. और उसने एक गलती अगर की होती तो उन लोगों ने इसको मार दिया होता. If God wouldn't have answered, he was gone. अगर परमेश्वर उत्तर नहीं देता तो ये मर गया होता. But God answered. लेकिन परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया. What a big testimony. कितनी बड़ी गवाही है ये. He doesn't even need to go to church to give testimony. उसको कलीसिया जाके गवाही देने की जरूरत भी नहीं है. It became the news of that day. क्योंकि वो उस दिन में खबर बन गई. The Lord is God. पर यहोवा परमेश्वर है. Everybody knew. सब जानने लगे थे. Entire Israel turned to God now. पूरा इज़राइल अब परमेश्वर की ओर मुड़ गया. 2 days later, 2 दिन बाद Elijah gets a letter. एलिया को एक चिट्ठी मिलती है. It's a threatening letter from Queen Jezebel. और उसको पत्र में धमकी मिलती है जो जेजेबेल रानी होती है उससे. And she says that I will do the same to you which you have done to Baal's servants. और वो कहती है कि जो तूने मेरे सेवकों को जिस तरह से मारा है उस तरह से मैं तुझे मार दूंगी. In fraction of second, और कुछ सेकंडों में ही Elijah, who was such a daring man who called fire from heaven, एलिया जो मनुष्य ऐसा था जिसने स्वर्ग से आग बुलाई, that same guy turns into a biggie billy. वही मनुष्य एक भीगी बिल्ली बन जाता है. He starts shivering there वो डरने लगता है, कांपने लगता है. because he sees himself what Jezebel showed him. और उसने उस दृश्य को देख लिया जो जेजेबेल ने उसको दिखाया था. Jezebel showed him that I will
kill you just the way you killed my servants. और जेजेबेल ने उसको धमकी दी थी कि जिस तरह से तूने मेरे सेवकों को मारा उसी तरह से मैं तुझे मारूंगी, And he starts running from there. और वो वहां से डर के भागने लगता है। You see one little twist in his imagination. और उसकी कल्पना में हम देखते हैं कि एक ही छोटा सा मोड़ था, But that changed the entire picture. और उसने उस पूरी कहानी को बदल दिया। Now we see that God tries to convince him to come back. अब हम देखते हैं कि परमेश्वर आगे उसको समझाने की कोशिश करता है कि तू वापस आ। 40 days God takes care of him. 40 दिन तक परमेश्वर उसकी देखभाल करता है। God sends angel to cook food for him. परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है कि उसके लिए खाना बनाए, But he doesn't listen. लेकिन वो सुनता नहीं है। He's just running. He says, I don't want to do this. वो डर रहा है और भाग रहा है, वो कहता है कि मुझे करना ही नहीं है। Which means there is a work which God has prepared for him and he's not willing to do it. इसका मतलब एक कृत्य था, एक कार्य था जो परमेश्वर ने उसके लिए बना कर रखा था, लेकिन वो उस कार्य को नहीं कर रहा था। Have we all become like Elijah today? क्या हम एलिया जैसे बन गए हैं आज? But there are works prepared by God for us, ऐसे कृत्य है, ऐसे कार्य है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं, which are marked for us only. जो सिर्फ हमारे करने के लिए बनाए गए हैं। It has your name on it that this sister, this brother, he will go and do it. उसके ऊपर आपका नाम लिखा है कि ये भाई ये बहन जाकर उस चीज को करेगा। And I would say we are greater than Elijah. मैं कहूँगा कि एलिया से बड़े हमको परमेश्वर ने बनाया। Sorry, I am not saying it. Bible says it. और ये मैं नहीं, ये बाइबल खुद कह रही है। Jesus says those who are John the Baptist is greater than everybody who is born of a woman. यीशु ने कहा यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था वो सारे पुराने नियम के जितने लोग थे उन सब से बड़ा वो था। But Jesus says he who is in the kingdom of God is greater than John the Baptist. लेकिन यीशु कहता है कि परमेश्वर के राज्य में जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा से भी बड़ा है। Are we in the kingdom of God? क्या हम परमेश्वर के राज्य में हैं? Yes. Any doubt? किसी को कोई शक है? No doubt. कोई शक नहीं। We are greater than Elijah. हम एलिया से बड़े हैं। Right? सही Because है, we have his spirit in us. क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। Now there's one thing I want to highlight here. एक चीज पे मैं ध्यान लाना चाहता हूँ। Let's go to John chapter 8 verse 42. यूहन्ना का 3:42 पे हम जाएंगे। 8:42. So we see here there's a conversation going between Jesus and Pharisees. 8:42. 8:42। So there's a conversation going between Jesus and Pharisees. तो यहाँ पर यीशु और फरीसी लोगों में एक संवाद हो रहा है। So every time Jesus is saying something, they are just countering it. और हर बार यीशु जब कुछ बोलते तो वो लोग उसका विरोध कर रहे थे। So first Jesus says that you are Jesus says that you are they say that we are descendant of Abraham. वो लोग कहते हैं कि हम अब अब्राहम के वंश से आए हैं। Then Jesus says if you were Abraham's descendants you would do the deeds of Abraham. यीशु लेकिन कहते हैं कि अगर तुम अब्राहम के वंशज होते तो तुम अब्राहम के कार्यों को करते। But he says you are trying to kill me. लेकिन तुम तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। Abraham didn't do this. अब्राहम ने ये नहीं किया। Then they go one step further. फिर वो एक और कदम आगे जाते हैं। They say God is our father. कहते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। Now the same thing they were accusing Jesus of. How can you say you are God's son? They are saying we are children of God. अब वो लोग यीशु पे यही दोष लगा रहे हैं कि तू कैसे बोल सकता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और अब वो कह रहे थे कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। Now Jesus makes a very important statement, और यीशु यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देते हैं, which is true for every one of us. और ये हम में से हर एक के लिए सच है। Now the reason I said in the beginning, Jesus didn't come for us, he came as us. शुरुआत में मैंने कहा कि यीशु हमारे लिए नहीं आया सिर्फ, लेकिन वो हमारे जैसा बनकर आया। Yes, that means we are like him and he is like us. इसका मतलब हम उसके जैसे और वो हमारे जैसा बना। Why I am saying that? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? Because of this verse.
इस वचन की वजह से। It says, Jesus said to them, if God were your father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. यीशु कहता है कि अगर पिता परमेश्वर अगर तुम्हारा पिता हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं उसी से उत्पन्न हुआ और उसी से मैं आया हूँ। Now I want you to imagine, अब मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करो, because this is the truth. क्योंकि ये सच्चाई है। Jesus, the way Jesus was born, जिस तरह से यीशु का जन्म हुआ, same way we are also born. उसी तरह से हमारा भी जन्म हुआ। Now Jesus was, where was Jesus before the foundation of the world? ये इस सृष्टि के निर्माण के पहले यीशु कहाँ थे? He was with God. वो पिता के साथ थे। Now here it says that for I proceeded forth and came from God. यहाँ पर लिखा है कि मैं पिता से आगे आया, उत्पन्न हुआ हूँ। Which means Jesus and God were one. Jesus came outside of God and then he came into this world. इसका मतलब पिता और यीशु एक हैं, लेकिन यीशु पिता से अलग होकर निकलकर इस धरती पे आए। You know, I did not exist 500 years back. आप जानते हो कि 500 सालों पहले मैं नहीं था इस धरती पे। Nobody was there. आप में से कोई नहीं था, None of you were there. कोई भी नहीं था। But God doesn't see it like this. लेकिन पिता इस तरह से नहीं देखता है। God knew where were you 500 years ago. पिता जानता है कि आप कहाँ पर थे 500 साल पहले। God knew who were your father, forefather, grandfather, great grandfather, who were your ancestors. पिता जानता है कि आपके दादा परदादा उनके दादा कौन थे, And he was tracking you. My son is going to come through this line. और वो आपको देख रहा था, ट्रैक कर रहा था कि मेरा जो बेटा है वो इस पीढ़ी से आएगा। And in his mind, he was already chosen you that, you know, he will be my son. और उसने अपने मन में पहले से ही तुमको चुन लिया था कि ये मेरा बेटा बनेगा। And I have created some works for him to और do. इसके लिए मैंने कुछ कार्य बना कर रखे हैं, And he will walk in those works. और वो उन कार्यों में, उन कृत्यों में चलेगा। Now Jesus is saying, I proceeded forth and came from God. यीशु कह रहे कि मैं पिता से उत्पन्न हुआ या पिता से मैं आया हूँ। And what word says about us? और वचन हमारे बारे में क्या कहता है? We are born of incorruptible seed. कि हमारा जन्म जो है वो उस अविनाशी बीज से हुआ है। Means we are also born of God. इसका मतलब हम भी परमेश्वर से उत्पन्न हुए। This verse we should see for ourselves. इस वचन को हमको अपने ऊपर लागू करना है That I proceeded forth and came from God. कि मैं परमेश्वर से उत्पन्न होकर आया हूँ। You see that you came out of God and then you were born again. आप देखते हो कि आप परमेश्वर से आए हो और फिर आपका नया जन्म हुआ है, And you are 100% like Jesus. और 100% आप यीशु जैसे हो। Though now why we are here is to convince our soul that this is the truth. अब हम यहाँ पर क्यों हैं? हमारे जीव को, हमारे प्राण को हमको समझाना है कि यही सच्चाई है। The more we read this, we will convince our mind that, you know, I am like Jesus. जितना ज़्यादा हम इसको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम समझेंगे, विश्वास करने लगेंगे कि हम यीशु जैसे हैं। Now I just want to give one illustration here. I think Brother Clifford, he was talking about lawyers. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे भाई क्लिफर्ड लॉयर के बारे में बात कर रहे थे। How many of you have been to a lawyer's office? आप में से कितने लोग एक लॉयर के ऑफिस में गए हैं? Okay, when you go to a lawyer's office, जब आप एक लॉयर के पास जाते हो, you will see that he has his table, chair, आप देखते हो कि उसके पास उसका टेबल और चेयर है, but also he'll have a big shelves also in his office. और एक बड़ा शेल्फ भी उसके पास होता है। What is there on those shelves? उन शेल्फ के ऊपर क्या रखा होता है? Books, right? किताबें, Books of laws. जो नियम है उसकी किताब होती है। These thick books. बहुत मोटी मोटी किताबें होती है। Why does he have those books? उसके पास वो किताबें क्यों हैं? Because if you go to him with your case, क्योंकि अगर आप अपना केस लेकर उसके पास जाओगे, if he knows the law by heart, उसको अगर वो नियम याद है, he will just tell you straightforward that, you know, okay, this is the case, this is how he'll handle it, and this will happen. और वो आपको बताएगा कि ये ऐसा नियम ऐसा कहता है और हम इस तरह से इस केस को हैंडल करेंगे। But if he doesn't know the law, अगर उसको वो नियम पता नहीं है, he will go there and bring his book. वो वहाँ पर जाकर अपने किताब को लेकर आएगा, He will open it. उसको खोलेगा, He'll start reading it first. उसको पहले पढ़ने लगेगा।
then he'll try to understand, he'll relate it with your case, और वो आपके केस के साथ इसकी तुलना करेगा and then he will tell you what will happen, what are the possibilities. और फिर वो आपको बताएगा कि क्या क्या हो सकता है. Now the reason I am bringing this example is, और ये उदाहरण मैं इसलिए ला रहा हूँ sometimes we also treat Bible like that lawyer. क्योंकि हम भी कभी कभी उस बाइबल को उस लॉयर के जैसा पढ़ते हैं. See, that lawyer knew certain laws which are by hearted by him. जो लॉयर था उसको कुछ कुछ जो नियम है वो याद थे He lives by those laws. और उन नियमों के अनुसार वो जीता है. That we can call that those things are his revelations. और हम कह सकते हैं कि वो जो नियम उसको याद है वो उसका प्रकाशन है. But those things he don't know. लेकिन जो नियम उसको पता नहीं है He has to go back there. उसको बार बार वहां पर जाना पड़ता है. We read in John chapter 1, यूहन्ना के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं it says the word became flesh and dwelt among us. उसमें लिखा है कि शब्द जो है वचन जो है वो देहधारी हुआ और वो हमारे बीच में रहने लगा. This entire Bible became flesh and it lives among us. ये पूरा जो बाइबल है वो शरीर का रूप धारण करके हमारे बीच में वो रहने लगा. Who was that flesh? कौन था वो शरीर? Jesus. यीशु. Right? He became flesh. वो शरीर बन गया. Now what is Lord's expectation today? अब परमेश्वर की अपेक्षा क्या है आज? This word has to become flesh again. इस वचन को फिर से देहधारी होना है. God wants you to get this inside your soul. परमेश्वर चाहता है कि इस वचन को हम अपने प्राण में उतार ले. That word should be here. वचन जो हमारे अंदर होना चाहिए. I know, I respect this book probably as much as you all do it. मैं इस किताब का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना आप सब करते हो. There were many people who died to get this book in our hands. और ये किताब को बाइबल को हमारे हाथ में लाने के लिए बहुत सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ी. This is a very precious book. एक बहुत कीमती किताब है ये. But till the printing was not invented, लेकिन जब तक प्रिंटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था how did people have word in them? तो लोगों में वचन कैसा था? How did Paul could write these many revelations? इतने सारे प्रकाशन पौलुस ने किस तरह से लिखे थे? Because the word had become flesh in him. क्योंकि जो वचन है वो उसके अंदर देहधारी हुआ था. Now when word became flesh in us, जब वचन हमारे अंदर देहधारी होता है we don't need to be like lawyer. तो हमको उस लॉयर के जैसा बनने की जरूरत नहीं Because है. the Holy Spirit is in us. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. Word says that He will remind you what I said. वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा कि यीशु ने क्या कहा. He reminds us in situations like different situation what is God saying to you. He speaks through His word. वो अलग अलग चीज़ों के द्वारा अलग अलग समय में हमको याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है तुमसे. So first we need to get this in our soul. तो पहले हमको इस वचन को हमारे प्राण में हमारे जीव में उतारना है. Now for Jesus it was like He became flesh. That's the reason He could live it out. और यीशु क्योंकि वचन देहधारी होकर इस धरती पे आया इसलिए यीशु उस वचन को जी रहा था. Now God is expecting same from us. अब पिता इसी चीज की अपेक्षा करता है हमसे भी. That He is the firstborn. Jesus is the firstborn. क्योंकि पिता यीशु जो है वो पहलोटा है, पहला पुत्र है. What He did, we will do the same works. जो उसने किया वही कृत्य वही कार्य हम करेंगे. But Jesus says, you will do the works I do and even greater works you will do. यीशु कहते हैं कि जो कार्य मैंने किया वो भी तुम करोगे और इससे बढ़कर कार्य तुम करोगे. Jesus didn't say, okay, I did this, but you will do this only. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने तो ऊंचे स्तर पे काम किया लेकिन तुम थोड़ा कम करोगे. You know I am Jesus, okay, you stay on your level. तो तुम तो जानते हो कि मैं यीशु हूँ तो तुम अपने स्तर में अपने लिमिट में रहो. No, He said you will do greater works than me. यीशु ने कहा कि मुझसे बढ़कर कार्य तुम करोगे. And the same word He has given us, the same Spirit lives in us. और वही वचन उसने हमको दिया है, वही आत्मा हमारे अंदर रहती है. Now then what is the problem? तो अब समस्या क्या है? Jesus walked in very intimate relationship with Father. यीशु जो है वो बहुत घनिष्ठ संबंध में चलते थे पिता के साथ. He knew the heartbeat of the Father. वो पिता की धड़कन को जानते थे. He knew what God wants him to do at that very moment. और वो जानते थे कि ये पिता क्या चाह रहे हैं कि उस समय में यीशु करे.
So the secret of his ministry was intimacy with Father. सो यीशु के जो सेवकाई का सीक्रेट था वो पिता से घनिष्ठता था. He was so close to Father that he could distinguish between voice of God, voice of devil. और वो पिता से इतना करीब था कि वो शत्रु के जो शैतान की आवाज़ है और परमेश्वर की आवाज़ में फ़र्क जानता था. That's the reason when Peter tries to tell some emotional thing, he says, "Get behind me, Satan." इसीलिए जब पतरस कोई इमोशनल चीज़ें यीशु को कह रहा था तो यीशु कहते हैं मेरे पीछे हो जा शैतान. He knows this is not my Father's voice. वो जानता था कि ये मेरे पिता की आवाज़ नहीं है. My Father loves me, but this is not him. मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है लेकिन ये आवाज़ उसकी नहीं है. And that, he walked in that closeness with Father. और वो पिता के साथ उस घनिष्ठता में चल रहा था. Now, one more thing, I think I would like to thank Brother Clifford for today's message तो आज के संदेश के लिए मैं भाई क्लिफर्ड का धन्यवाद करना चाहता हूँ. because he gave me so many points that really relate with what Lord wants us to know today. तो भाई ने जो भी कहा उसमें से बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर चाह रहा था कि आज हम समझें. So two things we'll see. दो चीज़ों को हम देखेंगे. Let's go to Ephesians chapter 2 verse 11-12. एफिसियों की दूसरे अध्याय और 11 और 12 वचन में हम जाएंगे. We read verse 10 that we are his workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared beforehand that we should walk in them. हमने 10 वचन में पढ़ा कि परमेश्वर के हाथ की रचना हम है और उन कृत्यों को करने के लिए जो परमेश्वर ने संसार के पहले बना कर रखी है उसके लिए उसने हमको बनाया है. See, it doesn't say that God made you workmanship, now you have to do some training, prepare and then do the works. It says walk in the works. और ऐसा नहीं लिखा है कि ये परमेश्वर ने तुमको अपने हाथ की रचना बनाया अब तुमको ट्रेनिंग करके उस काम को सीखना पड़ेगा, बल्कि ऐसा लिखा है कि उन कामों में चलो. When a child is born, when a child is growing, his first big milestone is he starts walking. जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला बड़ा काम ये होता है कि वो चलने लगता है. Walking is his first big milestone. तो चलना जो है उसके लिए पहला एक माइलस्टोन होता है. I saw my son growing up, how he started walking. मैंने अभी देखा कि मेरा बेटा कैसे बड़ा होते होते वो चलने लगा. I saw him that at some point he used to stand, but he would not walk. He just sit back again. मैंने देखा कि एक समय ऐसा था वो खड़ा होता था लेकिन आगे नहीं बढ़ता था और उसी जगह पे बैठ जाता Because he था. used to think that I'll fall, I can't walk. क्योंकि वो सोचता था कि मैं गिर जाऊंगा अगर मैं चलूंगा तो. I believe we also do the same sometimes. और मैं मानता हूँ कि हम भी ऐसा ही करते हैं बहुत We बार. stand in faith, हम विश्वास में खड़े हो जाते हैं but we don't walk in faith. लेकिन हम विश्वास में चलते नहीं We हैं. feel that oh no, that's too risky. हमको लगता है कि इसमें बहुत खतरा है. What if this is not God's voice? क्या होगा अगर ये परमेश्वर की आवाज़ नहीं है तो. What if God doesn't show up? अगर परमेश्वर यहाँ पर नहीं आता है तो क्या होगा. We don't walk, हम चलते नहीं हैं, we stand. हम खड़े हो जाते हैं. So this says that God prepared the works for us that we'll walk in them. ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन कार्यों को हमारे लिए बनाया है ताकि हम उसमें चले. So walking is very simple. Doing the works of God, as I was talking about Brother Sam, the works God has prepared for him will be very simple for him. जैसे मैं भाई सैम के बारे में बात कर रहा था तो परमेश्वर ने जो कार्य उसके लिए बनाए हैं उसमें चलना उसके लिए बहुत आसान होगा. Because God has put that nature in him. क्योंकि परमेश्वर ने वो चरित्र उसमें डाला है. He is not trying to be Benny Hinn. He is just being Sam Angre. उसको बेनियन बनने की इच्छा नहीं है, वो सिर्फ सैम अंग्रे बन के रह रहा है. Because God has kept works for him to do. क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए कुछ कार्य रखे हैं करने के लिए. Works which Benny Hinn can't do, he will do. जो बेनियन नहीं कर सकता है वो सैम करेगा. Because he is God's workmanship. क्योंकि वो परमेश्वर के हाथों की रचना है. Similarly, God has created works for us. उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे लिए काम बनाए हैं. Now, next verse, it says, God wants us to know something. अगला वचन कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ जाने. It says, therefore remember that you once Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by what is called the circumcision, circumcision made in the flesh by hands. तो
यहाँ पे लिखा है कि तुम जो खतना रहित लोग थे, उस प्रक्रिया के द्वारा जो हाथों के द्वारा खतना की जाती है, अब तुमको परमेश्वर ने खतने वाले लोग बनाए हैं। So it's talking about Jewish people, that Jewish people used to call you Gentiles, that you are not circumcised, you are not people of covenant. तो यहूदी लोग जो है वो दूसरे लोगों को कहते थे कि तुम अन्य जाति के लोग हो, तुम्हारा खतना नहीं हुआ है, तुम्हारे पास वाचा नहीं है। Yes, that at the time, 12th verse, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. तो उस समय तुम परमेश्वर से दूर थे और तुम्हारे पास कोई वाचा नहीं था और तुम्हारे पास कोई आशा भी नहीं थी। Right? We were very, like we were aliens, it says. यहाँ पे लिखा है कि हम एलियंस थे, हम दूर थे, बहुत दूर थे। Like we didn't even know there is a true God. कि हम जानते भी नहीं थे कि एक सच्चा परमेश्वर We है। didn't even know Jesus came for us. हम ये भी नहीं जानते थे कि यीशु हमारे लिए आया। We were so far from God. हम इतने दूर थे परमेश्वर से। We didn't even know we needed God. हम जानते भी नहीं थे कि हमको परमेश्वर की जरूरत We है। didn't know we were going to hell. हम नहीं जानते थे कि हम नरक में जा रहे हैं। Right? So we were so destroyed and away from God. हमारा नाश हो रहा था और हम परमेश्वर से दूर थे। It says we had no hope. यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास कोई आशा नहीं थी, We had no covenant of promise. हमारे पास कोई वाचा नहीं था और कोई परमेश्वर का वादा नहीं था। 13 verse says, but now 13 वचन कहता है लेकिन अब in Christ Jesus, यीशु मसीह में you who were once far off आप जो पहले बहुत दूर थे, have been brought near by the blood of Christ. आपको करीब लाया गया है यीशु के लहू के द्वारा। Means I didn't know that I am far from God. मैं जानता भी नहीं था कि मैं परमेश्वर से दूर था। Jesus came and he brought my hand and he brought me close to my Father. यीशु आया और उसने मेरे हाथ पकड़ के मुझे पिता के पास लेकर आया। He brought me near by shedding his blood. वो मुझे करीब लेकर आया, निकट लाया उसके लहू को बहाकर। Now I am standing in front of Father. अब मैं खड़ा हूँ पिता के सामने। You all are standing in front of Father. आप सब पिता के सामने खड़े हो You are closer to God than you could ever be. और आप पिता से निकट हो। Means you are so close to God like Jesus is close to God. आप पिता से उतने निकट हो जितना निकट यीशु है। But do you believe it? लेकिन क्या आप विश्वास करते हो? See, that's the problem. यही समस्या है। Word says he brought us near by the blood of Christ. वचन कहता है कि उसने हमको निकट लाया, करीब लाया यीशु के लहू के So द्वारा। why do we still feel distance between God and us? लेकिन फिर भी हमको एक अंतर क्यों महसूस होता है हमारे और परमेश्वर के बीच में? No, again, thanks to Clifford brother. तो क्लिफर्ड भाई का धन्यवाद। Let's go to that same verse, Hebrews chapter 9 verse 14. इब्रानियों के 9:14 में हम जाएंगे। This verse is really exciting. ये वचन बहुत उत्तेजित करता है। It says, how much more तो यहाँ पर लिखा है कितना ज्यादा shall the blood of Christ, उस मसीह का लहू। if you would read it in another translation, it would say blood of the anointed one. और दूसरे भाषांतर में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि अभिषिक्त जो व्यक्ति है उसका लहू। Anointed one means he is the most precious one in the entire universe. उसका मतलब वो सबसे कीमती है पूरे संसार में। We, so many VIP. बहुत सारे वी लगाकर वीआईपी। Most important person in the universe. सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति संसार में। Have you seen VIP people? आपने वीआईपी लोगों को देखा है? Our PM, then President of United States. हमारे पीएम हो गए, यूएस के प्रेसिडेंट हो गए। You will see that they are always so protected. आप देखोगे कि हमेशा उनकी बहुत रक्षा की जाती है। They have Z security, Z plus security. Z+ सिक्योरिटी उनके पास होती है। You know, when they pass the highways, they stop the highways till they are passing. जब वो जाते हैं तो हाईवे को रोक दिया जाता है उनके निकलने तक। They make sure that no one can even touch their hair. वो निश्चित करते हैं कि कोई उनके बाल को भी छू न पाए। But this says the most important person in the world shed his blood for us. ये वचन कहता है कि इस संसार में जो सबसे
महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसने अपने लहू को हमारे लिए बहाया। Why? क्यों? Not just to give us heaven, सिर्फ हमको स्वर्ग देने के लिए नहीं, but it has a purpose. लेकिन उसका एक मकसद है। It says, how much more the blood of Christ, who through the eternal Spirit of God offered himself without spot to God. कितना ज्यादा लहू, वो मेमने का लहू जिसने अपने आप को परमेश्वर के स्वाधीन किया। He likes to be shy and shy. He want to tie it here. Okay, so where were we? Who through the eternal Spirit of God offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. जिसने अपने आप को परमेश्वर को अर्पण किया है एक निर्दोष मेमने के समान, वो कितना ज्यादा तुम्हारे विवेक को साफ करेगा तुम्हारे मरे हुए कृत्यों से। Now let me talk about this Vivek. अब मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। You know, we are, as we saw in previous scripture, that we are close to God now. ये वचन कहता है कि पहले जैसे हमने देखा हम परमेश्वर से निकट है। Right? Jesus brought us near Father. यीशु हमको पिता से करीब लेकर आया है। But we don't feel close to God. लेकिन हमको निकट है, हम ऐसा महसूस नहीं होता है। Because in our conscience we still feel that we need to do some works to feel closer to God. क्योंकि हमारे विवेक में हमको लगता है कि हमको अभी भी कुछ कार्य करना है जिससे कि हम परमेश्वर के निकट जाए। Until and unless I pray for 2 hours, I will not feel spiritual. जब तक मैं 2 घंटे तक प्रार्थना नहीं कर लूँ मुझे आत्मिक महसूस नहीं होगा। Until and unless I, achieve something in life, or until and unless I see some testimony happening, God is not happy with me. जब तक मैं जीवन में कुछ उत्पन्न नहीं कर लूँ या कोई गवाही मैं सुनता नहीं हूँ तब तक मुझे नहीं लगता है कि परमेश्वर कुछ कर रहा है। I think yesterday, Alisha and I, we were talking about Brother Vishwas. कल अलीशा और मैं भाई विश्वास के बारे में बात कर रहे थे। She was talking, I was listening. वो बात कर रही थी, मैं सुन रहा था। She was saying that Brother Vishwas, he walked in so much Vishwas, so much faith here, उसने कहा कि भाई विश्वास इतने विश्वास में चले that for such a long time he did not see anything happening in his life. कि इतने सालों तक उनके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा था। He knew that he is going to marry a girl from United States. वो जानते थे कि यूएस की लड़की से उनकी शादी होने वाली है। So he knew that God has kept that girl and they both love each other. They want to get married. तो वो जानता था कि परमेश्वर ने उस लड़की को इसके लिए चुना है और ये लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वो शादी करने वाले हैं। Yes, and there were various things. Then comes visa. Then comes like he is going to get shifted there. बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है जैसे वीज़ा हो गया, इनको यहाँ पर वहाँ पर जाके अपना घर बनाना था। And then lockdown happened, so you know what happened. They completely stopped the flights and all. Everything was stopped. तो उसके बाद में उसके बीच में लॉकडाउन हुआ तो जो बाहर जाने वाली जो फ्लाइट्स है वो सब बंद हो गई। But we would see him every Sunday, Saturday. We would not see him anytime, upset, or he's not talking to anyone, or he's upset with God. लेकिन हर शनिवार और रविवार हम मिलते थे तो उसको देखकर ऐसे नहीं लगता था कि वो उदास है या वो परमेश्वर से बात नहीं करना चाहता। In fact, he would make us laugh, all of us, so much. लेकिन उल्टा वो हम लोगों को बहुत हंसाता था। So we were talking about him last night, and we knew that he was not walking by what he was seeing. He was walking with that promise. तो हम कल बात कर रहे थे कि वो जो उसको दिख रहा था उसको लेकर वो नहीं चल रहा था, लेकिन उस प्रतिज्ञा को लेकर, उस वादे को लेकर वो चल रहा था। So he knew that God loves him and God has a good plan for him. तो वो जानता था कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है और परमेश्वर की योजना उसके लिए अच्छी है। And we know that last December he just flew to United States, got married, now he is having a great life there. और अब पिछले दिसंबर में हम को पता है कि वो यूएस उड़ गया और जाकर उसकी शादी हो गई और एक अच्छा परिवार बना है। So he just got hold of that was God promised him. तो उसने उस चीज को पकड़ लिया जो परमेश्वर ने उसको दिया था। So I believe when he left an example for all of us that how to believe for a promise that is from God. तो उसके जीवन से हम देखते हैं कि एक
उदाहरण है हमारे लिए कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए कैसे विश्वास करना है। Now this verse, Hebrews 9:14, it talks about that blood of Christ not just brings us closer to God, it also cleanses our conscience to know that we are close to God. तो ये वचन कहता है कि यीशु का लहू सिर्फ हमको निकट लाकर खड़ा नहीं करता है, लेकिन हमारे मन को, हमारे विवेक को भी वो धोकर शुद्ध करता है, जिससे कि हम जान पाए कि हम परमेश्वर के साथ हैं। So this cleanses us from all the dead works. ये यीशु का लहू जो है वो हमको सारे मरे हुए कृत्यों से धोकर शुद्ध करता है। Now this letter was written to Hebrews, Jewish people. ये पत्र जो है ये जो यहूदी लोगों को लिखा गया था। Now they have long list of works they need to do before they get into temple. और उनके पास बहुत लंबी लिस्ट थी जो कार्य उनको करने पड़ते थे मंदिर में जाने से पहले। So Paul is calling all of those works dead works. तो पौलुस जो है उन सारे कृत्यों को मरा हुआ घोषित कर रहा है, Because you are going to serve a living God. क्योंकि आप एक जीवित परमेश्वर की सेवा करने वाले हो। How can you do dead works and serve the living God? आप कैसे मरे हुए कृत्यों को करते हुए जीवित परमेश्वर की सेवा कर सकते हो? We can only serve living God by doing living works. हम सिर्फ जीवित परमेश्वर की सेवा तब कर सकते हैं जब हम जीवित कृत्यों को करें। And living work is having intimate relationship with Father. और जीवित कृत्य ये है कि पिता के साथ हमारा एक घनिष्ठ संबंध हो। Because when our conscience is cleansed, that I know that there's nothing that I can do to make God love me more. क्योंकि जब हमारा विवेक साफ हो जाता है, हम जानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जिससे कि पिता मुझसे और प्यार करे। He loves me to the fullest. और वो पूर्ण तरह से मुझसे प्रेम करता है। There's nothing I can do to make him love me less or more. और मैं अभी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता हूं जिससे कि पिता मुझसे कम प्यार करे या ज्यादा प्यार करे। Because it's not by my works. क्योंकि ये मेरे कृत्यों के द्वारा नहीं हुआ है, It's by grace. वो उसके अनुग्रह के द्वारा है, It's by the blood of Jesus. वो यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। I have no part in this. इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, I am just beneficiary. मैं सिर्फ इसका फायदा उठाने वाला हूँ। I just got the benefit. मुझे इसका फायदा हुआ। As Brother Clifford said, I know God doesn't see us outside Christ. तो जैसे भाई क्लिफर्ड ने कहा कि पिता हमको यीशु मसीह के बाहर नहीं देखता है। Whenever he sees outside Christ, he's like, who's this guy? जब भी पिता हमको अगर यीशु के बाहर देखता है तो वो सोच रहा होगा कि ये कौन है ये बंदा। But as soon as you are in Christ, oh my son. और जैसे ही आप यीशु मसीह में हो तो वो देखता है कि ये मेरा बेटा है। And when are we in Christ? और यीशु मसीह में हम कब है? When we know that we are sons of God. जब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे हैं। When we know that he is firstborn and I am also God's son. जब हम जानते हैं कि वो पहलोटा है, वो पहला पुत्र है और मैं भी पिता का बेटा हूँ। He's the elder brother. वो हमारा बड़ा भाई है। He did the hard work first. उसने मुश्किल काम को पहले कर दिया। And now told us, you go and expand my kingdom. अब बोला है कि जाओ तुम और मेरे राज्य को बढ़ाओ। And to expand his kingdom, he has created different works for all of us. और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए हम हर एक को उसने अलग अलग काम दिया है। So the more we will be in our identity, the more we'll know that we are like Jesus. और जितना ज्यादा हम अपनी पहचान में चलेंगे उतना ज्यादा हम जान पाएंगे कि हम यीशु जैसे हैं। And the more we know that as Jesus is, so we are in this world. जितना ज्यादा हम जान पाएंगे कि जैसा यीशु है वैसे ही हम हैं इस जगत में। So whatever works God has prepared for us, we will start walking in them. तो जो भी कार्य पिता ने हमारे लिए बनाए हैं हम उनमें चल पाएंगे। And the reason I am saying this is because we see that David, let's take example of David. और हम दाऊद का उदाहरण देते हैं। We know that God anointed him to be king. हम जानते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया था कि वो राजा बने। But the moment he was crowned king, लेकिन जब वो राजा बना, he went and fought one lion, one bear. वो उसने जाकर पहले एक शेर से और एक भालू से लड़ाई की थी। He won both the fights. और उन दोनों लड़ाई को वो जीत गया। And third fight was with Goliath. और तीसरी जो लड़ाई थी वो गोलायत के साथ थी। He won that fight also. और वो उस लड़ाई को भी जीत जाता है। Then he goes into palace of King Saul. फिर वो राजा के महल में जाता है। There he is playing the harp. वहाँ पर वो हार्प बजा रहा है। Right? It's an instrument. So he is playing that harp in front of King Saul. और वो उस राजा के सामने इस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है।
that was God's work for him to walk into. और वो परमेश्वर का कार्य था जिसमें उस समय चल रहा था. God created a need for a son of God in Saul's palace. और परमेश्वर ने एक ज़रूरत को उत्पन्न किया कि परमेश्वर का बेटा शॉल के महल में जाकर काम करे. We know that God, Saul had a disturbing spirit from the Lord. हम देखते हैं कि शॉल जो उसको सजा एक मिली थी कि एक आत्मा आकर उसको परेशान करती थी. And it clearly says that spirit was from the Lord. और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उस आत्मा को भेजता था उसको प्रताड़ित करने के लिए. Now make no mistake, that was in Old Testament. Today we are in New Testament. लेकिन ये जान लो कि वो पुराने नियम में था और हम अब नए नियम में हैं. In Old Testament, for God, Saul was also sinner, David was also sinner, only David was anointed. पुराने नियम में परमेश्वर के सामने शॉल भी एक पापी था, दाऊद भी एक पापी था, लेकिन दाऊद का अभिषेक किया गया था. But David did not have Holy Spirit in him, लेकिन दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था. but he had a gift from God. लेकिन उसके पास एक तोहफा था परमेश्वर से. He could play a very melodious harp. उसकी कला ये थी कि वो एक हार्प जो है उस इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से बजा सकता. And because of that gift, he went into that palace and he was able to stand there. और उस गिफ्ट उस कला की वजह से उस महल में जाकर वो वहाँ पे खड़ा हो पाया. And word says God gave him favor in sight of everyone. और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको हर एक की नज़र में फेवर दिया. I believe he was like brother Sam only. Everyone would have liked to be around him. और मैं मानता हूँ कि भाई सैम के जैसा वो था कि सबको उसके साथ रहना पसंद था. Because we know that people starts liking him when he is in the palace. People start knowing him. तो हम देखते हैं कि जब वो महल में था तो लोग उसको पसंद करने लगे थे, उसको जानने लगे थे. God was building a king there. परमेश्वर एक राजा को वहाँ पर बना रहा था. He was setting up people who would support him. और वो लोगों को खड़ा कर रहा था जो उसको सपोर्ट करेंगे. And that was the beginning of King David. और वो दाऊद राजा की शुरुआत थी. And we see that later he fights many wars, many battles, and after 13 years he becomes king. और हम आगे देखते हैं कि बहुत सारी लड़ाइयों को वो लड़ा, जीता और 13 साल बाद जाकर वो राजा बना. So we know that God had a works for him to walk into. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कार्यों को बना कर रखा था ताकि दाऊद उसमें चले. Nobody, even David wouldn't have thought just by playing harp I would start that work which God has prepared for me. और दाऊद ने भी नहीं सोचा होगा कि सिर्फ हार्प बजाकर मैं उन कामों की शुरुआत करूंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया. He was crowned as a king, right? Anointed as a king. उसको राजा के तौर पर अभिषेक किया गया था. What is the relation of king and harp? अब राजा का और एक हार्प का क्या संबंध है? हिंदी में कह सकते हैं ऐसे वो जो वीणा बजाते हैं वैसा कुछ. So it was an instrument. तो एक इंस्ट्रूमेंट था वो. But we know that God through that gift got him into a palace, and from there God started giving him favor. God brought people around him, and he started his journey from there. और हम जानते हैं कि उस कला को इस्तेमाल करके परमेश्वर उसको उस महल में लेकर गया और वहाँ से उसको राजा बनाया और लोग उसके साथ आने लगे. We know that by killing Goliath also he got favor. हम जानते हैं कि गोलायत को मार कर भी उसको फेवर मिला. But for him to be in the palace every day, that gift was needed. लेकिन हर रोज वो महल में रह पाए इसलिए उसको उस कला की जरूरत थी. And through that daily going in, going out, God built his image as king. और हर रोज उस वजह से अंदर महल में रहने की वजह से परमेश्वर ने उसको स्थापित किया. For us, even today, I believe, I can't say that I know this 100%. मैं 100% इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकता हूँ. Because I am also learning like every one of us. कि मैं भी सीख रहा हूँ हर एक के जैसे. But one thing I can tell you for sure is God is going to use our church into various areas in this world. कि परमेश्वर हमारी कलीसिया को इस जगत में अलग अलग स्थानों में अलग अलग फील्ड्स में इस्तेमाल करेगा. This will not be a church who is just a church where presence of God is only here and we come here to enjoy it. ये कलीसिया ऐसा नहीं है जहाँ पर सिर्फ परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर होता है और यहाँ पर हम आते हैं उसको आनंद लेने के लिए. This church will be like the every person who will go anywhere, the presence of God will be there.
ये कलीसिया ऐसा है कि जब भी यहाँ का व्यक्ति कहीं पे भी जाता है तो परमेश्वर का उपस्थिति उसके साथ रहेगा. Be it your business, your office, your school, your college, your house, or even if you're going for cell meeting, if you're talking to someone for a business meeting, business deal, you're going to any politician's office, there also presence of God will be there. आप चाहे बिजनेस में जाओ, चाहे नौकरी में जाओ, चाहे पॉलिटिक्स में, कहीं किसी के ऑफिस में जाओ, जहाँ पर भी आप जाओगे परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ रहेगा. Because reason is you are a son of God उसका कारण यह है कि आप परमेश्वर के बेटे हो and you're walking in the works God has prepared for you. और आप उन कृत्यों में चल रहे हो, उन कार्यों में चल रहे हो जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई थी. So thank you, Abba Father. Let's stand, let's give thanks to the Lord. हम खड़े हो जाएंगे, पिता को धन्यवाद देंगे. Thank you, Abba Father, for today's word, Lord. पिता आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं. Thank you that you opened the eyes of our understanding. धन्यवाद कि तूने हमारी आंखों को खोला है. This word will not be just a sermon, Lord, but this will be a revelation for each one of us. और आज का वचन सिर्फ एक सरमन नहीं रहेगा, लेकिन एक प्रकाशन बनेगा हम सब के लिए. That we will walk in the works God has prepared for us. कि हम उन कार्यों में चलेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं. We will see ourselves like Jesus saw himself. हम अपने आप को वैसा ही देखेंगे जैसा यीशु ने अपने आप को देखा. We will see that we proceeded forth and came from God. हम देखेंगे कि हम पिता से निकलकर आगे आए हैं, उत्पन्न हुए हैं. And one day we will go back to our Father, और एक दिन हम फिर से हमारे पिता के पास लौट जाएंगे, just the way Jesus said it. जैसा यीशु ने कहा. Thank you, Abba Father, धन्यवाद पिता, for being so full of kindness and love towards us, Lord. और इतने आनंद और इतने प्रेम हमारे लिए तूने जो दिखाया उसके लिए धन्यवाद. Your word says, Lord, what manner of love God has bestowed upon us that we shall be called children of God. तेरा वचन कहता है कि किस प्रकार का प्रेम परमेश्वर ने हम पर जताया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाए. Help us, Lord, to see ourselves closer to you every day. हमको मदद कर पिता ताकि हम अपने आप को तेरे निकट देखे हर रोज. Thank you for cleansing our conscience from dead works to serve you, to meet you, to love you every day. धन्यवाद कि तूने हमारे विवेक को उन मरे हुए कामों से, कृत्यों से धोकर शुद्ध किया है ताकि हर रोज हम तुझे देख पाए. Let there be no gap, let there be no distance between you and me, Lord. तेरे और मेरे बीच में प्रभु कोई अंतर नहीं बचे. We will see each other, we will see us, Lord, that we are in the bosom of the Father. हम देखे कि हम पिता की गोद में हैं. Your word says, Lord, nobody has seen God at any time, but the Son who is in the bosom of Father, He has revealed Him. तेरा वचन कहता है कि किसी ने भी पिता को नहीं देखा, लेकिन वो बेटा जो पिता की गोद में है उसने उसको प्रकट किया है. We want to be those sons in your bosom, Lord, who will reveal the Father to this world. हमको बेटा बनना है तेरी गोद में जो तुझे इस जगत को प्रकट करेगा. Thank you, Abba Father, for your love. धन्यवाद पिता तेरे प्रेम के लिए. Thank you, Lord. I bless each and every person here, Lord. मैं यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति को आशीषित करता I हूँ. thank you, Lord, for everyone who is watching us online हर एक also. व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद देते जो हमको ऑनलाइन देख रहे हैं. Thank you, Lord, for you have transformed our mind, Lord. धन्यवाद पिता कि तूने हमारे मन को बदल दिया है. And you have filled our hearts with your love. तूने हमारे दिलों को तेरे प्रेम से भरा है. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. In the name of Lord Jesus Christ, we all agree and pray, Lord. हम यीशु के नाम से स्वीकारते हैं और प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. I would like to call Pastor to conclude. Hallelujah. We all are blessed. हम सब आशीर्वादित हुए. Hallelujah. ये कलसिया को प्रभु बना रहा है. Hallelujah. है ना, परमेश्वर के वचन से हम सबको संवार रहा है ताकि हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा जीवन का जो बुनियाद है वो परमेश्वर का वचन हो. हालेलुया. और उसके ऊपर हम जब घर बनाएंगे तो आंधी तूफान चट्टान कुछ भी आएगा उसको टकराएगा, वो घर गिरेगा नहीं. हालेलुया. और वो बुनियाद कौन है? प्रभु यीशु मसीह है. हालेलुया. जितना हम मसीह को जानेंगे उतना हमारा बुनियाद जो है मजबूत होगा. हालेलुया. क्योंकि वचन प्रभु यीशु है. तो जो भी वचन हम सुन रहे हैं, हालेलुया, उसको ले लो और उसको पवित्र आत्मा आपके अंदर सच करने दो. तब ये वचन आपके अंदर सच होगा तो ये
है ना, शरीर में, आपके शरीर में प्रकट होने लगेगा, आपके जीव में प्रकट होने लगेगा और आपका स्वभाव बदलने लगेगा। आप मसीह के जैसे दिखने लगोगे, चलने लगोगे, बोलने लगोगे और वैसा ही प्रतिफल आपके जीवन में दिखाई देगा। हालेलुया। आखिरी गीत गाएंगे। अच्छा, किसी का गवाही देना है तो आप दे सकते हैं। किसी का गवाही है? आज मदर्स डे है, ऐसा बाइबल में है क्या? मालूम नहीं। मदर्स डे अब सब मना रहे, तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। जितने भी मदर्स यहां पर है, हाथ उठाए। टेस्टिमनी है क्या? अच्छा अच्छा। धन्यवाद प्रभूला. मला काम लागलं होतं 2-3 दिवस आधी, पण थोड्या किरकिरीमुळे ते मी काम सोडलं 3 दिवस आधी. तर ते लोक मला म्हणजे असे टेन्शन द्यायला लागले. तर 3 दिवस जसं वचन आता सांगितलं की एलियाला 40 दिवस घाबरून राहिला होता, तसं मी 3 दिवस घाबरून राहिले आणि काही जेवू पण वाटत नाही आणि काही करू पण वाटत नाही. आणि की त्यांना टेन्शन आलंय की आता ही बाई राहत नाही, त्याच्यामुळे ते लोक मला ब्लेम करायला लागलेत की मला इतकी भीती वाटायला लागली की ते लोक मला चोरीचा आरोप घालून काय पण बोलू शकतात किंवा काय पण करू शकतात. असं येल्यासारखंच मी पण घाबरलेले आहे. ते वचन माझ्यासाठीच आलं होतं. ते म्हणजे माझ्यासाठीच आज देवाने बोलले असं की देव माझ्यासाठी प्रत्येक वेळेस उभा राहतो आणि काही ना काही वचनातून बोलतो. मी आजारी होते त्यावेळेस पण त्यांनी मला आरोग्य दिलं. त्यावेळेस पण मला तेच वचन येऊन मला आरोग्य भेटलं होतं. एखाद वेळेस माझा हात काम करत नव्हता, त्यावेळेस पण वचन दिलं होतं ते रिबिकाचं. त्यावेळेस पण माझ्या हातामध्ये ताकद आली आणि मला सहाय्य केलं देवाने. आज मी संकटात आहे तरी पण हे वचन दिलं. सगळ्यात पहिलेच पास्टरांनी येऊन सांगितलं की हा देव मोठा आहे, सर्वात मोठा वकील आपला देव आहे. त्या देव जिवंत देव आहे. त्यांनी प्रत्येक गोष्टीमध्ये मला ताकद दिली, बळ दिलं. आणि आज मी संकटात आहे, माझ्यावर काही आरोप घेऊन ते काही करू शकतात. तर आज ते वचन दिलं पास्टरांनी की आपला वकील देव आहे म्हणून, आणि मी ते ग्रहण करते आणि स्वीकारते. आणि काही जरी झालं तर आज माझ्या मनातून तो राग पण गेलाय, टेन्शन पण गेली. त्याच्यामुळे मी देवाला धन्यवाद करते की देव आज त्या वचनामधून माझ्याशी बोलला आणि मला साक्ष द्यायला उभं केलं. म्हणून देवाला धन्यवाद देते. तर देव खरोखर जिवंत आहे. प्रत्येक संकटात आपल्याला उभं राहतो आणि प्रत्येक वचनातून आपल्याशी बोलतो आणि प्रत्येक वेळेस आपल्याला ताकद आणि बळ देतो. त्यासाठी देवाला धन्यवाद देते. हालेलुया, आमेन. प्रभु को धन्यवाद देंगे. हालेलुया कि प्रभु का वचन हर एक के जीवन में काम कर रहा है. हालेलुया, है ना. वचन ही है जो हमको बदलेगा, है ना. प्रार्थना करने से किसी का जीवन नहीं बदलता, टेम्पररी है. लेकिन वचन को जानोगे, मसीह को जानोगे, दैविक आरोग्य में चलोगे. हालेलुया. अंदर का मनुष्य तुम्हारा बलवान होगा. हालेलुया. क्या भी समस्या आने दो, क्या भी प्रॉब्लम हो, विश्वास से उसके ऊपर तुम जय पाने वाले बनोगे. हालेलुया. तो हम आखिरी गीत गाएंगे. Check. Wow, what a Sunday. First of all, happy Mother's Day to everybody. I know it is not in the Bible, but Bible does say, honor your father and your mother. So, not only one day, but every day we should honor them. And today's message was so powerful. Thank you, Lord. Thank you for Brother Ramesh for such a powerful message. When he was saying, there was just one thing that reminded us. He mentioned the word, created. Prabhu Yeshu ne hame banaya hai na. Workmanship is what we call it. And then that same thing just came in my heart. And the day when God made Adam, he breathed his all. Means जिस दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उस दिन परमेश्वर ने उसके अंदर जितना भी था, like whatever he had just blown in Adam. And man became a living breath. So we carry that breath, guys. We are not just near God, but we are in him.
है ना? And let's sing this song. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है. Right? How many of you all know this song? कितने लोगों को ये गाना आता है? Okay, very good. So we're going to play some beats. I want the claps to go on because the गाना ये कहता है मैं ताली बजाऊंगा आनंद से. Right? So I want to hear. Can you clap? सब लोग ताली बजा सकते हैं? No. It's not. Yeah, follow it. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से. और एक बार. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से. ताली बजाऊंगा आनंद से. परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, नाचूंगा आनंद से. परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, नाचूंगा आनंद से. मैं नाचूंगा आनंद से. मैं नाचूंगा आनंद से. One second. Guys, can we dance? हम लोग गाना तो गा रहे हैं, मैं नाचूंगा, बट नाचते कैसे है? Can someone show me? That's it. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से. Amen. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से. और एक बार. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से. मैं नाचूंगा आनंद से. मैं नाचूंगा आनंद से. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से. और एक बार. जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से. मैं नाचूंगा आनंद से. मैं नाचूंगा आनंद से. मैं नाचूंगा आनंद से. तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा, प्रभु की जय. तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा, प्रभु. और एक बार. तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा, प्रभु की जय. तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा, प्रभु की जय. गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय. हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय. तू मेरा आनंद, तू मेरा आनंद, तू मेरा आनंद, मेरा आनंद, प्रभु की जय.
मेरा सामर्थ, तू मेरा सामर्थ, तू मेरा सामर्थ, मेरा सामर्थ, प्रभु की जय। तू मेरा सामर्थ, तू मेरा सामर्थ, मेरा सामर्थ, प्रभु की जय। गाओ गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। ओ परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी, एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, मिलिए।